देखा था नाम। मुझे लगता है मैंने नाम देखा था। नहीं नहीं, जगह नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये हो पाएगा। आप बिजी हैं, फिर रमज़ान है, सब लोग कह रहे हैं। Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good afternoon to you all. तो नहीं We किया। welcome you to our session titled Let's Heal the World, moderated by Sabiha Sumar. She is a filmmaker and producer, best known for her independent documentary films. Her first feature film, Khamosh Pani, won 17 international awards, Can we have including. slides, please? Ma'am? Ladies and gentlemen, we have a final request. Please take your seats. Our speakers are getting disturbed. Thank you. I shall begin again. The title of this session is Let's Heal the World, moderated by Sabiha Sumar. She is a filmmaker and producer, best known for her independent documentary films. Her feature film, Khamosh Pani, won 17 international awards, including the Golden Leopard Award for Best Film at the Locarno Film Festival in 2003. She is known for exploring themes of gender, religion, patriarchy, and fundamentalism in Pakistan. She, along with Sharmeen Obaid Chenoy and Samar Minallah, are the only three Pakistani women independent documentary filmmakers to have screened their work outside of Pakistan. Please give them a big hand. Assalamu alaikum. Thank you very much for that very nice introduction. And I'm really pleased to be here and to have a session on films. I think for the 25-year career that I've had, I've always wanted more and more support for films because the films matter. Art matters in every society, and arts offer us a mirror to see ourselves, to question ourselves, and to critique ourselves, and to learn from ourselves. And I'm so glad to have Getz Pharma supporting such an initiative. It's really a very bold step to support young filmmakers, watch their work, give them positive feedback, and also to award them, to encourage them further in their work. So this is really a wonderful thing that has been initiated by Getz under the title of Iqbal Ahmed Center for Public Education. So let me introduce the jurors, who are all really actually very well-known people. So on my left is Khalid Mahmood, CEO of Getz Pharma, but that's not how I know him. I know Khalid as a very different person. I don't know him for that long, but long enough, I think. He started with very humble beginnings, and he sort of released himself from his upbringing and went out into a very progressive political understanding of our world. So he's in a way a self-educated person, somebody who reads avidly, who discusses issues and doesn't shy away from things that truly matter in the world. Now he's of course the CEO of Getz Pharma, but I believe he still has his heart in the right place. Then there is Khalid Ahmed, a TV director, producer, and actor. He's won the Best Actor Award for his film Intizar at the Harlem International Film Festival. But that's not all what Khalid is. I mean, I also know Khalid Ahmed for a long time. And he's a wonderful writer, he's a poet, he's a singer. And I think he really embodies the arts in his being. It's wonderful to have him as a friend. And then we have Hidayat Sayer,
whom I don't know myself very well, but he's definitely known for his script writing and his poetry. He's well known for poems like Madari, Bashira, which seek to explore society. And there's Bigul. Bigul is a very well-known screenwriter. She and I worked on a short film together called Chote Shah. I think she's a brilliant dialogue writer and a screenwriter. She's well known for her work on Pakistan TV and also films like Talkhiyan, Pehchan, and Kamar Ara. So we have a really nice group of people here, very willing to discuss the work of young filmmakers. And the topic that has been chosen is also very relevant, Heal the World. I think both films in their own ways talk about this healing. The first film called Musafir is by Kadir Dino. I don't know the filmmaker, but as I watched the film, I felt that he was very intimate with his subject. It's about a fishing community who have lost their son to the Pakistan-India conflict, and the young man has gone missing during a storm as his ship traveled across international waters, and he was taken prisoner by the Indian Navy. And the family is still waiting for his return, not knowing when and if he will come. But it's a film also in a way full of hope, because the family refuses to give up. And so for me, it's really a film about human resilience, and how, when watching the film, I feel we as people have sort of lost empathy, humanity for such situations, because we see them so far removed from us. But when we see them in the film, and that's the magic of film, is that that is brought so close to us. And the second film is about education and the importance of education for young people. So both films are, in their own ways, contributing to the dialogue on Heal the World. Thank you very much. And I think now we are going to see the Getz production of a film called Heal the World. It's a DVC called Heal the World, right? Yes. Thank you.
कभी अल्फाज को आवाज़ नहीं मिल पाती, एहसास बोलता है। अपने लिए और अपने प्यारों के लिए इस धरती को हरा रहने दें। गो ग्रीन, हील द वर्ल्ड। Are we showing the films? After we talk? अब देखा रहे हैं ना? हाँ. ये सोफा हटवा दे. So that was a film by Getz called Heal the World. And now we'll see the winning film and the runner-up short film. Both are short films. The first film, the winner film, is called Musafir, which means traveler. And it's by Kadir Dino. So let's watch that. अक्सर एक न्यूज़ आपके सामने आती है कि गलती से बॉर्डर लाइन क्रॉस करने पर माहीगीरों को उस मुल्क की फोर्सेस ने हिरासत में ले लिया है। आप इस न्यूज़ पर वक्ती अफसोस करने के बाद उसको भूल जाते हैं, पर उनकी फैमिली का क्या हाल होता है ये मालूम है? सुनसान बस्तियाँ, वीरान गलियाँ, तन्हाई से भरा हुआ हर लम्हा। ऐसी ही कहानियों की तलाश में कराची में आबाद मछेरों की बस्तियों में निकल पड़ा। वरी हल हल तंहिंखे 2 टे साल थी विया। तंहिंखां पोइ असां लाइ खत आयो। तंहिंमें असांजा घरनि में न रातोरो न ॾींहों ॻाल्हि अची कयूं
मुंहिंजो पीउ किथे वञे त पीउ विया दबई कमाइण। हुनखे इहा ई उमेदु आहे त मुंहिंजो पीउ कमाइण विया असां लाइ हीअ आणींदो हीअ आणींदो। यहीं से निकलते हैं, वहीं पे ये तूफान भी आ जाती है, हवाएं भी आ जाती है, लेकिन अपनी पाकिस्तान की हुदूद सरहद जो है वो घोड़ों तक है, केटी बंदर घोड़ों तक है, उनसे आगे इंडिया का बॉर्डर है। तो यानी कि ये पानी की वजह से, धुंध की वजह से, अंधेरे की वजह से और कुछ मच्छी की लालच की वजह से वो लोग जो इंडिया के बॉर्डर तक पहुंच जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से ये माइग्रों को कोई सप्लाइटी नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता है। ना कोई है भाई पकड़ा गया कि भाई उसके बच्चों को कुछ देवे, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो रहा है। आपको इनके तल्ख और गुसीले लहजे से ये अंदाज़ा हो गया होगा कि ये लोग किस कदर अजियत और तकलीफ़ का शिकार हैं। अक्सर एक न्यूज़ आपके सामने आती है बस और दूसरी भी दिखा रहे हैं और दिखा रहे Excuse me? Sorry. And now we'll see the second film, which is called Guddu, and it's by. Oh, sorry. Oh, not Guddu. Sorry, I don't know why I have Guddu stuck in my mind. Chotu, and it's by. I don't have the name of the director. Can somebody help me, please? Sorry. So the runner-up film is by Javed Iqbal and it's called Chotu. की वजह से, और जो मैंने उस्ताद ये बाइक चेक करें, क्या हो गया, अचानक बंद हो गई है। मैं वहाँ यासीन बन के गया था, बट मेरा नाम छोटू रख दिया गया। ये बड़ा एक
अवार्ड से नवाजा गया है, जिसके साथ साथ जो ट्रेनिंग्स पे दिए गए हैं, पब्लिक स्पीकिंग में गए, गेस्ट स्पीकर पे दिए गए हैं, और जो सबसे लाजवाब मुझे यादगार अवार्ड रहा वो आई एम कराची यूथ चैम्पियन का था कि मलिर के इलाके से मुझे रिकगनाइज़ किया गया, मुझे अवार्ड से सराहा गया कि आप एक चैम्पियन हैं जो यूथ के हवाले से काम कर रहे हैं, जो ज़िंदगी का मेरा सबसे बेहतरीन अवार्ड रहा। यूं ही फल नहीं गिरा करते झोली में, वक्त की शाख को हिलाना होगा, और कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया जलाना होगा। जी, ये आवाज़ आ रही है? हाँ, yes. No, it's actually wonderful to see that people continue to make films despite the fact that there's no film school in Pakistan, there's no TV academy, there's hardly any training ground, and yet there's so much talent, and one can only imagine how much better it could get if there was proper training for filmmakers, for film writers. There are so many opportunities, and Pakistanis could actually compete in the international arena if there was adequate training. But we've just seen some young talents work here, and it's very interesting, the subjects they've chosen. So now I want to turn to the jury and ask Khalid first, actually, Khalid Mahmood. You know, every time I've been here, there's always at least one story on fishing villages, fishing community, and I'm wondering why this topic is so debated, so much, you know, of so much interest for our people. Can you comment on that, Khalid? जी, तो सवाल ये है कि हर जो हमारी एंट्रीज़ होती हैं तकरीबन हर साल 1 या 2 या 3 जो फिल्में होती हैं वो हमारी फ़िशिंग कम्युनिटीज़ के बारे होती हैं। तो देखिए, जो मेरा ख़्याल है कि जो अदब होता है और जो शायरी होती है, अदब होता है, लिटरेचर होता है और डॉक्यूमेंट्रीज़ फिल्में होती हैं, वो जो मुआशरे में, समाज में जो हालात होते हैं उसकी अक्कासी करती है। तो अब ये देखें कि हमारा जो कराची शहर है, और चूँकि हम कराची शहर में यहाँ पे कराची शहर में जो हमारा कोस्ट है वो तकरीबन 1000 किलोमीटर पे है, और ये तकरीबन दुनिया का सबसे प्रोडक्टिव कोस्ट है, पानी है ये, जहाँ पे सिर्फ कराची के करीब तकरीबन 50-60 स्पीशीज़ हैं फ़िश की जो खाई जा सकती हैं। और फ़िशिंग ट्रेड ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, और बहुत ज़्यादा हमारा जो कोस्ट था वो फ़िश के ऊपर था, फ़िश की एक्सपोर्ट होती थी। मगर और उसके अलावा अगर आप ये देखेंगे, अक्सर आप ख़बरों में पढ़ते होंगे कि फ़िश जो है वो जो यहाँ पे वेल मछलियाँ आती हैं, दुनिया की बहुत ही एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ ऑफ वेल फ़िश आर वॉश्ड ऑफ आवर शोर्स। कैन यू इमेजिन कि अगर इतनी बड़ी जो सप्लाई जो आपकी जो चेन है उसके अंदर अगर सबसे बड़ा जानवर होगा तो उसके नीचे कितनी हज़ारों मछलियाँ होंगी। इस तरीके से डॉल्फिन्स, हज़ारों डॉल्फिन्स यहाँ नज़र आती हैं, और बहुत ही रेयर एंड बड़ी फ़िश नज़र आती है। मगर ओवर द ईयर्स यहाँ पे जो फ़िशिंग इंडस्ट्री की नेगलेक्ट हुई, हम इस शहर में हर रोज़, नॉट हर साल, नॉट हर महीने,
600 million gallons, यानी 60 करोड़ गैलन्स ऑफ रॉ अनट्रीटेड सुएज यहाँ पे फेंकते हैं इस पानी में। और जो मैंग्रोव्स हैं उसकी जो जिस तरह से अनब्रिडल्ड जो कटाई हो रही है, और उसके अलावा ये कि जो जिस तरीके से जो लैंड रिक्लेम की जा रही है फॉर मैं उसको कहूँगा इलीगल तरीक़ों से वो लैंड ली जा रही है, और उसको जो सी लिया जा रहा है, उसके ऊपर आपको जो परवीन रहमान ने बहुत कहा है, परवीन साहिबा ने, जिनका आपको पता है मर्डर हो गया था। और इकबाल अहमद सेंटर फॉर पब्लिक एजुकेशन की अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो उसके ऊपर बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं। तो जिस तरीक़े से एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री की फ़िशरमैन जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी एजुकेशन नहीं होती, तालीम नहीं होती, वो सुबह एक महीना समंदर में रहते हैं, बहुत तुग़यानी होती है उसमें, अपनी जान को पे खेल के मछली पकड़ते हैं, लाते हैं, उसकी एक्सपोर्ट होती है, वो सब अब ख़त्म हो रही है, तबाह हो रही है। और उसकी वजह से जो वहाँ के जो लोग हैं उनको कोई हुनर दूसरा नहीं आता, तो लिहाजा इस शहर में जो इस तरह से जो बहुत बड़ी आबादी जो है वो मार्जिनलाइज्ड हो रही है, वो ख़त्म हो रही है, और उनका कोई सुनने वाला नहीं है, उनको कोई ठीक करने वाला नहीं है हालात। और हम बड़े हमने इस शहर में वो फाउंटेन्स बनाए हैं 2-2 अरब रुपए के, मगर हमने कभी भी एक भी यहाँ पे जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया। जो नेदरलैंड्स की गवर्नमेंट ने 6 प्लांट दिए थे उसमें से आज एक भी नहीं चलता। मुझे याद है आज से 20 साल पहले 150 मिलियन गैलन्स जो था वो रॉ अनट्रीटेड सुएजेज जो था वो होता था। तो ज़ाहिर है वहाँ की जो आबादी है, वहाँ के बच्चे हैं, वो इसके बारे में फ़िल्म बनाते हैं, वो बहुत पैशनेट हैं, वो देख रहे हैं उन हालात को। तो मेरे ख़्याल में ये वजह है सबिया कि इसकी कराची में इतनी ज़्यादा इसकी जो फ़िल्म फेस्टिवल में इसकी इतनी ज़्यादा होती है, जो एंट्रीज़ होती हैं। Thank you so much. And I just want to ask the jury members, was it a consensus or did you have differences of opinion on who the winner and the runner-up would be? Sorry? ये बिल्कुल इंडिपेंडेंटली हुआ है, किसी को नहीं मालूम था कि दूसरे ने क्या फैसला किया है। जो मैंने किया है वो मेरा था। अच्छा, मैं सॉरी अगर मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो अवेयरनेस है बुनियादी तौर पर हमारे यहाँ ज़्यादा मसला अवेयरनेस का मैसेज का है, ठीक है। सो मैं अगर उर्दू में अबलाग करूँगा तो ज़्यादा बेहतर होगा उनके लिए, वो बात समझ सकेंगे, इसलिए मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ। और फिर दूसरे नंबर पे मैं देख रहा था, जैसे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मुसाफिर जब चली तो मैंने पीछे कुछ लोगों को आंसू बहाते देखा, तो मुझे एक शेर याद आया कि दास्तां ख़त्म हुई और ऐसे ख़त्म हुई, लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। तो बात ये है कि उस एहसास को, उस दर्द को जैसे हम महसूस कर सकते हैं, चूँकि जब हमने देखा, चूँकि मैं एज अ फिल्म मेकर, एज अ स्क्रिप्ट राइटर जब मैं मैसेज में जाता हूँ, मैंने खासतौर पर फिशर फोक्स के साथ फिशरीज़ में मैंने बहुत काम किया, तो मैंने देखा यहाँ लोगों के बहुत मसाइल हैं। उनको रोज़गार से लेके, उनकी तालीम से लेके, उनके ख़ास तौर से जब वो बॉर्डर लाइन क्रॉस करते हैं उसके बाद जो लोग उनके वहाँ फंस जाते हैं, तो वो एक बड़ी कठिन ज़िंदगी है उनकी। जैसे सर ने कहा कि वो लोग बड़ा सफ़र कर रहे हैं तमाम तर चीज़ों में, सो उन लोगों की ज़िंदगी बड़ी एक दर्द से भरी हुई है ना, कि आप अगर जाएँ तो शायद एक हफ़्ता आके आप खाना ना खा सकें। वो इतने दुख भरे लोग हैं वहाँ पे, वो चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो बात आपने की कि ये पूरी सूरत हाल में हमें नहीं मालूम था कि इन्होंने क्या फ़ैसला किया, उन्होंने क्या फ़ैसला किया। हमने अपने तौर पे, अपने एहसास से और अपने नज़र से देख के हमने जो भी मार्किंग थी वो हमने की है, इसमें कोई मालूम नहीं था हमें। अच्छा, तो ये तो बड़ी कमाल की बात है कि मतलब ब्लाइंड एक तरह से आपने इसका फ़ैसला किया और सबकी राय एक जगह जम गई। दैट्स वंडरफुल। अच्छा, और मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने तो इसकी एक जस्टिफिकेशन भी दे दी कि आपको ये फ़िल्म क्यों पसंद आई, इसलिए क्योंकि इसमें इतना दर्द है, इसमें लोगों के एहसासात मालूम होते हैं और उन लोगों से जिनसे हम रोज़मर्रा नहीं मिलते और वो हमसे इतने दूर लगते हैं, मगर जब आप जाके मिलें, जब आप फ़िल्म बनाते हैं तो आप उनसे करीब तर हो जाते हैं और फिर उसी कहानी को आप लेकर आते हैं, दूसरों के साथ शेयर करते हैं और उनको भी इस तरह से करीब लाते हैं। तो छोटू के बारे में आप बताएंगे कि बिगुल एज अ राइटर आपको उस कहानी में क्या चीज़
ज़्यादा पसंद आई? कोई ऐसी एक बात या कैरेक्टर या द होल स्टोरी लाइन, क्या वजह थी? आदाब। मैं तो फ़िल्म बनाने वालों से मुखातिब यहाँ होना चाहती हूँ। आपको तो मैं देख रही हूँ, कुछ लोगों को जिनको मैंने देखा है स्क्रीन पे, तो मुझे अंदाज़ा है कि जिन्होंने फ़िल्म बनाई, बहुत खुशकिस्मती की भी ये बात है उनके लिए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म उन्हें मिला। मुझसे कुछ लोगों ने पूछा किसकी बनाई हुई फ़िल्में हैं, तो मैंने कहा पता नहीं, मैं नहीं जानती। ये ख़ुद एक बहुत खूबसूरत बात है कि कोई बड़े नाम नहीं है, कोई ऐसे ये सोचा जाए कि जी कोई बहुत इस्टेब्लिश्ड फ़िल्म मेकर्स हैं जो ये काम कर रहे थे। ये बहुत ही अच्छी बात है कि उनको ये मौका दिया गया यहाँ के, उनकी फ़िल्में यहाँ तक पहुँची, हमने देखी, जो शॉर्ट लिस्ट हुई। दोनों फ़िल्में से भी जो हमने पहली फ़िल्म देखी मुसाफिर, जिस पे तीनों का हमारा कंसेंसस हुआ और हमारा आपस में कोई राब्ता नहीं था ज्यूरीज़ का, उसमें मुझे लगता है कि सच्चाई बहुत है, बहुत हकीकत है। इट्स अ वेरी रियल स्टोरी। आपको ये नहीं लगता कि आप कोई फ़िल्म देख रहे हैं, वो किसी की बहुत सच्ची कहानी है, उनकी ज़िंदगी है। और यही बात छोटू में भी मुझे लगी कि जो प्रोटैगनिस्ट है जिसकी बात हम कर रहे हैं, वो बहुत रियल है, वो सचमुच एक हकीकत है। और आई थिंक कि वो जो कंटेंट था उनका अपना, जो वो ख़ुद बयान कर रहे हैं, दैट वाज बियॉन्ड द स्क्रिप्ट ऑल्सो। वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो बात उन्होंने कही। और जो मुसाफिर है उसमें सिर्फ मछेरों की कहानी तो है, उस बस्ती की कहानी भी है, उनके मसाइल भी हैं, लेकिन उस एक अनदेखी सरहद का जो तस्करा है जो कि पानी के ऊपर खिंची हुई है और जिस पर इन लोगों का ना इख्तियार है ना कसूर है, उसकी सज़ा ये काटते हैं। मेरे लिए वो बहुत अहम है। थैंक यू, सो वेल सेड। बीगुल ने इतनी खूबसूरती से बयान की है दोनों फिल्मों की हकीकत को। तो खालिद, आप भी प्लीज़ बताएं कि आपको इन दोनों फिल्मों में क्या चीज़ आपको लगी कि बहुत अहम थी, या इसमें कुछ किरदार आपको खिंच रहे थे? क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मुतासिर कर रही थी आपको? जी, मुसाफिर जो फिल्म है वो जिस चीज़ की अक्कासी करी, उसके बारे में हम अखबार में तो पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन उसको देखकर हम जज्बाती तौर पर भी मुतासिर हुए बग़ैर नहीं रह सकते। और जो मुझे भी बिल्कुल यही, जो अभी बीगुल ने कहा कि ये ख्याल उसके बाद देखने का बार बार आता रहा है कि पानी पर लकीर नहीं खींची जा सकती, लेकिन हमारे यहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो मुसिर हैं कि पानी पर भी हम लकीर खींचेंगे। और मैं ये भी सोचता रहा हूँ कि कैसे वो जहन होंगे उन लोगों के, जो अगर कोई माहीगीर गलती से इस तरफ भटक आए तो उसको आप पकड़ के जाकर जेल में भर देते हैं साल हा साल के लिए, या इधर से दूसरी तरफ भटक गया तो उसको आप पकड़ के उसकी पूरी ज़िंदगी, उसके पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी आप ख़त्म कर देते हैं कि वो पानियों में, चूँकि लकीर अभी तक डाल नहीं पाए, डाल लेंगे ये लोग, तो वो भटक आते हैं। भाई उसका तो सीधा सा इलाज ये हो सकता था कि जो भटक आया उसको आपने कहा कि भाई तुम इधर आ गए हो, जाओ जाओ इस तरफ और अपने पानियों में जाओ, अपनी सरहद में जाओ, तुम इधर आ गए हो, सिर्फ इतना कहने की बात है। लेकिन वो मतलब शिकारी कुत्तों की तरह वो मतलब दांत नजरें जमाए इस इंतज़ार में कि कोई ज़रा 10, 15, 20 फुट ज़रा इधर तो आ जाए, उसको जाके वो झपट लेते हैं जानवरों की तरह, और फिर उसको जानवरों ही की तरह घसीट कर जेलों में बंद कर देते हैं। दोनों हुकूमतों की
को ये दोनों मुल्क की हुकूमतों को भी ये बात समझ में नहीं आती है कि ये कैद करने की क्या बात है। भाई आप सीधे सीधे उसको घर भेज दें, उधर आप ये कर दें। एक मज़ा आता है, अपनी जेलें भरते हैं, फिर मुज़ाकरात करते हैं, फिर इधर के लोग इधर जाते हैं, वो पता नहीं क्या क्या मुज़ाकरात चलते हैं, सालों साल में बेचारों को जाके आज़ाद करते हैं। मतलब किस किस्म के लोग हैं हम लोग। हमारा जो ये सब कॉन्टिनेंट है, इसमें जो लोग रहते हैं, कितने घटिया जहन के लोग हैं हमारा हुक्मरान तबका। मैं तो यही सोच रहा था इस फिल्म को देखकर। थैंक यू। जी ज़रूर। इसमें खालिद साहब ने बहुत अच्छी बात की। इसमें एक और छोटा सा जुमला है जिसमें उसने वो आखिर में कहता है कि वो कभी तो अंधेरे की वजह से, कभी धुंध की वजह से, और फिर उसने एक बहुत माजरत करते हुए कहा कभी किसी मछली की लालच की वजह से भी उधर चले जाते हैं। जी नींद की वजह से सो जाते होंगे। तो मछली तो कैसे फैसला करती है कि वो उस तरफ है या इस तरफ है। अगर आज वो उस तरफ है तो वो उनकी मछली है, और इस तरफ है तो वो हमारी मछली है। मेरा ताल्लुक़ ज़रा सा कुछ समंदर से ज़्यादा है, कुछ एक बागबानी का शौक़ है। तो जहाँ मैं जाता हूँ और ये शहर में 27 साल से काफ़ी वहाँ पे टाइम वक्त सर्व करता हूँ, तो मेरे ख़्याल में मेरा ज़मीर मुझे माफ़ नहीं करेगा कि मैं आपको आँखों देखा हाल बताऊँ कि अब ज़ाहिर है मैं हिंदुस्तान की तरफ नहीं गया, शायद वहाँ पे भी ऐसा होता होगा, मगर जो कई सौ जो आते हैं वो मच्छरों की, बेचारे गरीब मच्छरों की जो किश्तियाँ, उनमें कुछ नहीं होता, लकड़ी होती है और अंदर ज़ाहिर इंजन होता है, और वो उस समंदर में चलाने के लिए बहुत मज़बूत इंजन चाहिए होता है, और एक विंच होता है जो कि टनों मछली को मोटर से खींच के लाता है। वो दोनों मिलके कई करोड़ के, मुझे नहीं पता 1-2 करोड़ के होते होंगे। जब ये वहाँ आती हैं ये किश्तियाँ, तो ज़ाहिर है हिफाजत से वहाँ रख दी जाती हैं, और चंद रोज़ में उसमें बहुत ही एक मिस्टीरियस तरीक़े से कोई मखलूक आती है और उसमें एक सुराख कर देती है और वो डूब जाती हैं। मगर उससे पहले वो करोड़ों रुपए की जो विंच है और मोटरें हैं वो निकाल ली जाती हैं। उसके बाद जब उनको छोड़ते हैं और कहते हैं अच्छा भाई ये मछली अपनी कश्ती निकाल लो, तो वो ऐसा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा बैंक है, फैक्ट्री है, कोई उनका ज़रिया माश का सदियों से जो एक टूल्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके पास, वो ख़त्म हो गई होती हैं, आग में लग जाती हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही ये वो चीज़ें हैं जो लोग देख नहीं सकते, और मैं समझता हूँ कि इसको दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आर्ट जो है वो या तो बहुत फैंसी चीज़ें भी आर्ट होती हैं, मगर जो आवाम दोस्त वो आर्ट होता है, और जो समाज में जो तख्त चीज़ें होती हैं उसको बयान करता है, उसको भी किसी को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ टेलीविज़न पे नहीं आ सकती। शुक्रिया। थैंक यू। तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारे फिल्म बनाने वाले हैं कादिर तीनों और जावेद इकबाल, क्या वो यहाँ हमारे साथ हैं? अगर हैं तो प्लीज़ अगर आप भी आएँ और हमें बताएं कि आप लोगों ने अपने जो मज़मून थे इन फिल्म्स के लिए वो क्यों चुने, और किस वजह से आपने ये सब्जेक्ट को चुना। मैं लेती हूँ। आप प्लीज़ यहाँ बैठे। आपका नाम? जावेद इकबाल। जावेद इकबाल। इन्होंने बनाई है छोटू। सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम करना चाहूँगा, और उसके बाद मैं शुक्रगुज़ार हूँ जजिस का जिन्होंने हमारे काम को सराहा। और ये जो फ़िल्म है इसके बनाने का मकसद ये था कि मेरे हिसाब से ज़िंदगी में जो मतलब जो सक्सेसफुल एक आदमी है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करता है लोगों के लिए,
तो ये वो माशरा है कि जहाँ पर लोगों को मतलब एक कंपटीशन है, हर एक बंदे के पीछे एक बंदा है, तो कोई रियल है कोई फेक है। तो जो फ़िल्म बनाने का मकसद था कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रमोट किया जाए, उनको आगे लाया जाए और उनकी हौसला अफजाई की जाए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सॉरी। और कादिर डीनो, क्या आप हमारे साथ हैं? जी, कहाँ है वो? जी, अस्मा। अच्छा अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। कादिर डीनो क्यों नहीं आ सके? अच्छा अच्छा, आप अस्मा हैं, आपने उनके साथ काम, आपने स्क्रिप्ट लिखी है। ये अस्मा हैं, इन्होंने कादिर डीनो की स्क्रिप्ट लिखी है, जो फिल्म है मुसाफिर, उसकी स्क्रिप्ट। प्लीज़ अस्मा, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। सबसे पहले तो मैं गेट्स फार्मा कंपनी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो नौजवान नस्ल को या उनके टैलेंट को सब लोगों के सामने या जो भी वो करना चाहते हैं वो सब के सामने लाने की पूरी कोशिश करते हैं। असल में हमारा मकसद इस फिल्म को बनाने का ये था कि जब मैंने एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में कोस्टल एरियाज़ का विज़िट किया तो मैंने देखा कि वहाँ के लोग बहुत मसाइल का शिकार हैं। बुनियादी इंसानी हुकूक जिनकी हर इंसान को ज़रूरत होती है वहाँ पे उनको मैसर नहीं थे। साफ़ पानी पीने के लिए नहीं था, खाना खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, और ऐसी ज़िंदगी वो जी रहे थे जो शायद एक आम इंसान के बस की बात नहीं है वो ज़िंदगी जीना जो वो जी रहे थे। तो जब मैंने देखा कि वो लोग इतने मसाइल का शिकार हैं तो मैंने फिर इस कॉन्सेप्ट को देखा जो गेट्स फार्मा कंपनी ने दिया था कि हील द वर्ल्ड। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इसको अपने माइंड में आते साथ हमारे जहन में बहुत सारे मसाइल आते हैं जिनमें टेंशन है, डिप्रेशन है। आज के हालात में जहाँ पे हर इंसान माशी मसाइल का शिकार है और वो अपने माशी मसाइल की फ़िक्र में लगा रहता है। एक तेज़ ज़िंदगी हो गई है जहाँ वो अब दूर करने के लिए, अपने मसाइल को हल करने के लिए भागता है, जहाँ के वो दूसरों को या दूसरे लोगों के मसाइल को नहीं देख पाता क्योंकि उसके अपने मसाइल इतने ज़्यादा होते हैं कि उसके लिए मुश्किल होता है कि दूसरे के मसाइल को भी वो देख सके कहीं पे। तो इस सिलसिले को हमने सामने रखते हुए कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट सामने लाया, एक ऐसी फ़िल्म लेकर आए ताकि लोगों को पता चले कि वहाँ पे रहने वाले लोग जो समंदर का सफ़र करते हैं, जो कि हमारे लिए एक ज़रूरी चीज़ भी है। ज़ाहिर है फ़िशेस का जो उनका बिज़नेस चलता है वो पूरे पाकिस्तान में जाता है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए। तो अगर उन लोगों पे हम बात करें या उनके मसाइल को सामने करें तो ये हमारे लिए या हमारे मुल्क के लिए या और भी बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदे की बात हो सकती है। और दो सरहदों के बीच में अगर एक इंसान को जो अपनी रोज़ी रोटी कमाने की कोशिश कर रहा है उसको दबोच लिया जाए, उसको रख लिया जाए या उसको सारी ज़िंदगी के लिए कैद कर लिया जाए तो ये यकीनन बड़ी तकलीफ़ दे बात होती है। तो मैं खालिद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आज तक जो भी मैंने इनके बारे में सुना, मैंने पढ़ा, तो मैंने देखा ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली बहुत ज़्यादा हैं और वेलफेयर के काम करते हैं। और आज के दौर में जहाँ पाकिस्तान पोल्यूशन के मामले में दुनिया के चंद बड़े मुल्कों में आता है, चौथे पाँचवें नंबर पे अभी भी लाहौर का नंबर आ रहा है, तो ऐसे दौर में या ऐसे माहौल में ये चीज़ ज़रूरी है कि हमारे लोग इन्वायरमेंट या इस काम में इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्योंकि जैसे अभी खालिद साहब ने भी बताया था कि पाकिस्तान जो 600 मिलियन गैलन जो रॉ मटेरियल है वो समंदर के अंदर डंप कर रहा है, उसके अंदर हमारी बहुत फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं और भी कराची के अंदर या लाहौर के अंदर या जहाँ भी पाकिस्तान के अंदर हम देख लें तो उनका जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो डायरेक्ट समंदर के अंदर डंप हो रहा होता है, जिसकी वजह से वहाँ की एक्वेटिक लाइफ तबाह हो रही है। तो
हमें चाहिए कि हमें सबसे पहले इन्वायरमेंट फ्रेंडली होंगे तो हमारी लाइफ रहेगी, हम जिएंगे, हम अच्छी सेहत होगी, हमारी आने वाली नस्लें अच्छे से परवान चढ़ पाएंगी। तो हमारे लिए ये चीज़ इंतहाई ज़रूरी है कि हमें इस बारे में एक आवाज़ उठानी चाहिए कि जितना भी वेस्ट समंदर के अंदर डंप किया जा रहा है या डिफॉरेस्टेशन हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। और आखिर में मैं शुक्रिया के साथ एक शेर कहना चाहती हूँ कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, क्या बांट सके इंसान को। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका आसमा, और इतना खूबसूरत शेर जिसने हमारे तमाम डिस्कशन का एक जुज़ निकाल लिया। बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं चाहूँगी कि हमारे ऑडियंस में से जो लोग सवाल करना चाहते हैं, थोड़ा सा हमारे पास वक्त है कि आप हमारे फिल्म मेकर्स से भी, जूरी मेंबर्स से भी, जिनसे चाहें आप अपने सवालात कर सकते हैं। Are there any questions? मेरा सवाल उस बच्ची से जिसने अभी तकरीर की थी, ये ग्रामर स्कूल के बाद स्टैनफोर्ड गई थी या कहाँ गई थी? MIT गई थी, कहाँ गई थी? इट्स रियली रियली ए प्लेजर कि पब्लिक स्पीकिंग में आपका पहले बैकग्राउंड नहीं है और आप इतनी फेयरलेसली, इतनी अच्छी तरह अपने आप को एक्सप्रेस किया कि बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे जो है नहीं एक्सप्रेस कर पाते। थैंक यू सो मच। असल में मेरा ताल्लुक़ जो है वो आज़ाद कश्मीर से है, तो मैं यहाँ पे अपने तालीम के सिलसिले में यहाँ पे हूँ। कराची यूनिवर्सिटी में अभी मैंने मास्टर किया है यहाँ पे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में। जी, कोई और सवाल? जी, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल हिदायत साइड से है क्योंकि उनका भी ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है। मैं जानना चाहती हूँ कि आप क्या समझते हैं कि हमारे माशरे में एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो मूवीज़ हैं, जो फिल्म्स हैं, उसमें उसके रुझान में इतना कमी क्यों है और ऐसे क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए कि ये उभरता हुआ मौजू जो है इस पर फिल्में सामने मज़ीद आ सकें ताकि हम इस मसले पर काबू पा सकें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे यहाँ। जैसे कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया तो बच्चों ने वहाँ फिल्में भेजी। अच्छा, एक चीज़ और, शायद बहुत सारे लोग यहाँ देख के ये सोच रहे होंगे कि इन फिल्मों में तो कुछ खास है नहीं प्रोडक्शन वाइज या बाकी चीज़ों के हवाले से। मैं ये समझता हूँ एक राइटर होने के नाते कि जब भी कोई एक फ़िल्म, कोई शॉर्ट फिल्म या कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसके एंड में अगर दो चीज़ों में से एक चीज़, या तो कोई कहा लेके आप मुसर्रत लेके एंटरटेनिंग होकर आप निकले तो ठीक है, या फिर आप कोई सोच लेके निकले तो ठीक है, आपका मैसेज पहुँच गया। अगर इन दोनों में से कोई चीज़ भी नहीं है तो मेरे नज़दीक उस पर सरमाया लगाने की, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। सो आपने देखा होगा कि प्रोडक्शन वाइज अगर ये चीज़ें इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इनके बीच वो जो दर्द था, जो एहसास था, जो कि पैगाम था कि इन लोगों को हमें कैसे ठीक करना है, कैसे इस इन्वायरमेंट को ठीक करना है, कैसे ये सब कुछ करना है, वो तमाम तरह मैसेजेस थे। अच्छा, अब उसमें मैं बुनियादी तौर पर ये कहता हूँ कि ये ख़ास तौर पर ये काम बनता है यूनिवर्सिटीज़ का, इदारों का, कि वो जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं वो उनसे इन तमाम तर मसाइल के हवाले से उनको अवेयर करें और उनको बताएं कि किस तरह से हम अपने माशरे में बेहतर अंदाज में जो है वो किसी भी अवेयरनेस के हवाले से प्रोग्राम को बेहतर लोगों तक पहुँचा सकते हैं और अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। सो प्लेटफॉर्म्स का होना बहुत ज़रूरी है और मैं समझता हूँ कि जैसे गेट्स फार्मर ये इनिशिएटिव लिया, अगर बाकी लोग भी इस तरह से इनिशिएटिव लेते रहें तो मेरे ख्याल से बहुत सारे इलाकों के बहुत सारे मसाइल जो है वो हमारे सामने आ सकते हैं। मेरा नाम जाहिद है, वैसे मैं बलुस्तान से तुर्बत से ताल्लुक़ रखता हूँ। वहाँ पे ऐसा सिचुएशन है या कि ग्वादर में ऐसी सिचुएशन है कि आप कैमरा लेके आप कभी शूट करने जाएं तो जंग ज़दा माहौल है, आपको सिक्योरिटी फोर्सेस आपको नहीं छोड़ते, मतलब कि आप पूछते रहते हैं कि ये क्या कर रहे हो, क्या पूरा एक दिन लगा लेते हैं सवाल करने में। तो ऐसे माहौल में, ऐसे सिचुएशन में हम किस तरह से ऐसी डॉक्यूमेंट्री जैसे फिल्म बनाएं? शुक्रिया।
अच्छा, मैं यहाँ पर मुझे ना डॉक्टर अनवर सज्जाद साहब का एक लिखा हुआ एक शो, एक ड्रामा है, वो कवि साहब मस्जिद से निकलते हैं और ये दौर है ज़िया का जहाँ आम इंतखाबात नहीं हो सकते, ठीक है। अब वहाँ पे जो है वो ठेले पर फ्रूट सजे हुए हैं। कवि साहब कहते हैं मियाँ कैसे दिए फ्रूट, तो उसने कहा जी ऐसे ऐसे, उन्होंने कहा जी हम इंतखाब करके लेंगे। तो उसने अमरूद इंतखाब कर लिया, केला इंतखाब कर लिया, सब इंतखाब कर लिया। जब आम पे हाथ रखा ना तो ठेले वाले ने हाथ पकड़ लिया, कहा ना मियाँ आम इंतखाब नहीं होंगे। अब मेरी बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब यह है कि जहाँ आपको चारों तरफ से कदगने हों, रोक रकावट हो, तो वहाँ आपकी तख्लीकी महारत है कि आप कैसे उस चीज़ को किस प्रॉपर वे में आप लोगों तक पहुँचा सकते हैं। यही आर्ट है मेरे ख्याल से। चीज़ें तो सारी मौजूद हैं, मगर आपको कैसे क्रिएट करना है ये आपका फ़न है, और उसके लिए जाहिर सी बात है कि आपको फिर उसमें देखना होगा, पढ़ना होगा, सोचना होगा, आगे बढ़ना होगा। थैंक यू। एक आखिरी सवाल हम ले सकते हैं, प्लीज़ ये जो सामने बैठे हैं इनको दे दीजिए, और उसके बाद हमें अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल जो है ना वो खालिद साहब से है कि हमारे मुल्क में तकरीबन 1000 किलोमीटर का समंदर है, और हमारे पाकिस्तानियों ने ही गल्फ़ में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाए हैं, डिसैलिनेशन प्लांट भी बनाए हैं, और वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। लेकिन हमारे मुल्क में पाकिस्तान का पहला डिसैलिनेशन प्लांट अभी तक नहीं चल रहा, जो डिफेंस में लगाया गया था। तो आइंदा गवर्नमेंट बड़े बड़े क्लेम कर रही है कि सीपैक का हो जाएगा, और गवादर में भी डिसैलिनेशन प्लांट लग रहा है। तो ये तो अगर पानी नहीं होगा तो सब कुछ, सारी प्लानिंग बेकार हो जाएगी। तो इसमें कहाँ पे गलती हुई है कि हमारे मुल्क में कोई डिसैलिनेशन प्लांट नहीं चल पाया अभी? देखिए जी जी कि खालिद अभी आपको इस सवाल का जवाब भी देंगे, और फिर खालिद हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो फिर आप रैप अप भी कर जी दीजिएगा। द लास्ट वर्ड इज योर्स। जी शुक्रिया। तो शुक्रिया आपके सवाल का। देखें मैं तो इस सवाल का जवाब मैं ख़ुद कोशिश कर रहा हूँ मालूम होने की, पता करने की कि क्यों, क्या वजह है। मैंने कई मुल्कों में काम किया है, छोटे और बड़ों में, घाना में और कैम्बोडिया में, छोटे मुल्क हैं वो, और अब तो हम करीब हो गए हैं, मगर एक ज़माने में हमसे कहीं वो गरीब थे। वहाँ पे 10 गैलन भी रॉ अनट्रीटेड सुएज जो है समंदर में नहीं डलता। हमारे यहाँ 600 मिलियन गैलन्स पर डे सिर्फ यहाँ डलता है। यहाँ तो फिर भी समंदर, कुदरत ने ऐसा कोई इंतज़ाम किया है कि ताज़ा पानी आ जाता है, मगर पंजाब के जो रिवर्स हैं वो दुनिया के 10 मोस्ट पॉइजनस रिवर्स हैं, क्योंकि वहाँ पे इंडिया में भी ऐसा नहीं है। अब वहाँ लगा रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पे, मगर वहाँ दरिया ब्यास से, दूसरे मुल्कों से हमारे यहाँ जो थोड़ा बहुत पानी आता है, और वो पॉइजनस पहले होता है, और उसकी वजह से हमारे यहाँ कोई सेंटर फॉर कंट्रोल डिज़ीज़ कंट्रोल भी नहीं है। मगर जो इस वक्त जो डेटा निकल के आ रहा है कि वो जो लोग साहिल, दरिया के साहिल के साथ रहते हैं, आबादियाँ, उनकी जो बच्चों में जो लुकीमिया की बीमारी है, कैंसर की, वो वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड हैं। और मतलब ये बहुत तशवीशनाक बात है। मगर अब मुझे बस तो मैं ना सियासतदान हूँ, ना मैं माहिर इक़्तिसादियात हूँ, तो मुझे इसका जवाब नहीं मालूम, और थोड़ा बहुत ज़्यादा बोलूँगा तो ज़रा सा अच्छा नहीं लगेगा बाद लोगों को जो शायद यहाँ पे हों भी। तो मेरे ख्याल में बेहतर ये, आप ख़ुद इसका सवाल ढूंढिए। यहाँ पे माहिरा साहबा बैठी हैं, ये एक ऑर्डिनरी सिटीज़न हैं, और इन्होंने इतनी अच्छी मूवीज़ बनाई हैं इसके ऊपर। एक इन्होंने मूवी बनाई है सिटी बाय द सी, जो कि एक ऐप इकबाल अहमद सेंटर फॉर पब्लिक एजुकेशन की जो वेबसाइट है, जो ब्लॉग है, उसके ऊपर है। इसी तरह से इन्होंने परवीन रहमान का इंटरव्यू किया है, उसके ऊपर है, उन्होंने बहुत से कहा है। इसी तरह से इन्होंने और शौकिया बनाई हैं, ये अपने वक्त पे अपने पैसे से 2-2, 3-3 दिन समंदर के अंदर रह के यहाँ वहाँ एज अ रिसर्चर। तो आप इनकी भी देख लीजिए तो शायद आपको जवाब मिल जाएगा। और इसी तरह इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि वो इस तरह से। अब मैं बेसिकली क्योंकि इन्होंने मेरे ज़िम्मेदारी लगा दी है, तो मैं बस ये कहूँगा कि जो जूरी है ये इनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। 20
25 एंट्रीज़ आई थी, 15 शॉर्ट लिस्ट इन लोगों ने की और 2 को अवार्ड दिया। 25 फिल्मों को देखना 7, 8, 10 मिनट की बहुत बड़ी कमिटमेंट है इन लोगों ने की, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इन्होंने, क्योंकि ये यानी इनका कुछ डेडिकेशन है, कमिटमेंट है कि माशरे को ठीक करें, इस तरह के फ़िल्मों को करें और जिसमें कोई बहुत ज़्यादा ग्लैमर नहीं है, मगर मैं समझता है हमारे फ्यूचर जनरेशन के सर्वाइवल के लिए ये बहुत ज़रूरी है इस तरह की डायलॉग होना। इंशाल्लाह इस शहर में अच्छे और सस्ते फ़िल्मी स्कूल बनेंगे और इनकी टेक्निकल क्वालिटी और बेहतर हो जाएगी, मगर मैं समझता हूँ अभी भी बहुत अच्छी थी, इससे भी अच्छी होनी चाहिए। तो शुक्रिया, मैं आपका मैं कंक्लूड करता हूँ। आवाज़ नहीं आ रही, मुँह कर करीब कर लें, मुँह क्लोज इट। सॉरी, बहुत शुक्रिया ऑडियंसेस का और जूरी मेंबर्स का, खालिद का, और बहुत शुक्रिया मुसाफिर बनाने वाली टीम का, अस्मा का, और रनर अप छोटू फिल्म के डायरेक्टर जावेद इकबाल साहब का और उनकी टीम का कि उन्होंने इतनी अच्छी फिल्में हमें देखने दी। अवार्ड दे दें, प्राइज़ दे दें, प्राइजेस देने। जी, वो तो ज़रूरी है। हाँ, अच्छा, अवार्ड जो है वो फर्स्ट विनर हैं मुसाफिर हैं विनर फॉर द EACPE फिल्म अवार्ड कादिर दीनो के लिए अस्मा लेंगी, राइट? अस्मा इज गोइंग टू टेक इट। प्लीज आप सर, ये आपका सर, ये आप। जूरी को कैसे देना होगा? रनर अप अवार्ड है फिल्म छोटू के लिए, डायरेक्टेड बाय जावेद इकबाल एंड हिज टीम। प्लीज जावेद इकबाल। जावेद, आप एक शेर पढ़ना चाहते थे ना? शेर पढ़ लीजिए। जोर से पढ़ो। ये एक शेर है फ़रत अब्बास शाह का जो मैं कहना चाहूँगा। वही है जबर, वही बेबसी हमारी है, वही खुदा है, वही बंदगी हमारी है, न दुख है बदले न दुख देने वाले बदले हैं, वही नसीब वही ज़िंदगी हमारी है कब किसी के कहीं आने जाने से बदली, है कब किसी के कहीं आने जाने से बदली, ये मुस्तकिल है जो लाचारी हमारी है। हमें पता है नहीं है बहादुरी उसकी, हमें पता है कि ये बुज़दिली हमारी है। हमारे वहमों की तरतीब को न छेड़े कोई, कि अब हुजूर इसमें खुशी हमारी है। अदालतें हों या सरकार हो या हो दीगर, सभी है उन्हीं का, फ़कत शायरी हमारी है। तुम्हारे जुल्म का अंजाम होने वाला है, हमें यकीन है कि अगली सदी हमारी है। शुक्रिया। मैं जूरी को छोटा सा एक टोकन ऑफ सुवेनियर देना चाहता हूँ। ये कुछ किताबें हैं जो हमने पब्लिश की थी, ये गेट्स फार्मा लाइब्रेरी ऑफ बुक्स वाली हैं, तो आपको शायद पसंद आएँ।
much for attending the Gets Pharma EACP session.